Good morning students, and in this video we will discuss in detail the steps involved in the process of incorporation. So let's begin. So today in this video we will analyze in detail the steps involved in incorporation of a company. So what we have discussed by far is that these are some of the steps involved in incorporation of a company. So if anybody wishes to incorporate a company, he will have to comply with some legal formalities in order to get a company incorporated. So as you can see, these are some legal formality that one needs to comply with in order to get a company incorporated. कि अगर आपको कोई भी कंपनी बनानी है तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी. अब हम आज की इस वीडियो में, इन टुडेज वीडियो, we will analyze the first two steps in detail. So first and foremost is the name of a company, because we say company is a person, and just like every person has a name, company is also legally required to have a name. But whenever you decide a name for a company, or if you have selected in your mind a particular name for a company, let's say I am going to name my company this limited, like ABC limited or XYZ limited, whatever name which you have selected in your mind. Okay, so first you will have to make sure that the name which you intend to use for your company is not already in use, or a existing company is not already using that name which you have selected. कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, जो कंपनी अभी इस समय चल रही है, वो उस नाम से तो रजिस्टर्ड नहीं है. कि अगर मान लो मैं कोई नाम सोचता हूँ, लेट्स से एबीसी लिमिटेड, देन आई विल हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो अदर कंपनी, no other existing company by the name of ABC Limited. I will have to make sure that there is no other company with the name of ABC Limited. So this is like when you make your Gmail account, or when you create your Gmail account, or any email ID. So first and thing is that the algorithm of Gmail will check that whether the username you have selected is not already in use, whether or not it is already in use. So first thing, जो गूगल का जो सर्वर करेगा वो देखेगा कि जो यूजर नेम आप चाह रहे हो अपनी मेल आईडी के लिए, वो पहले से तो कोई यूज नहीं कर रहा है. ठीक है. सो द सेम थिंग इज हियर ऑल्सो. First, you need to be sure that the name which you intend to use for your company is not already in use by some other company. Okay. And as I have discussed in my previous video, if you are registering a private limited company, or if you are incorporating a private limited company, तो उसके पीछे से आप जो सफिक्स ऐड करोगे, यू विल ऐड द सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. अगर आप जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, एबीसी लिमिटेड लेट्स से, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब भी बनाओगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा यस दैट दिस इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ठीक है, सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड. एंड इन केस इफ यू आर रजिस्टरिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, you are incorporating a public limited company, then you will have to use this word limited. वहां पे आप प्राइवेट लिमिटेड यूज नहीं करेंगे, वहां पे लिमिटेड. ठीक है. अगर मैं XYZ लिमिटेड बना रहा हूं, XYZ लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, देन आई विल जस्ट यूज द वर्ड लिमिटेड. ओके. तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आप जिस तरह की कंपनी बनाओगे उसी तरह का पीछे से जो एक सफिक्स आपको ऐड करना पड़ेगा. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड. एल्स अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इफ यू आर incorporating a public limited company, then you will use the suffix limited.
So now you have decided on a particular name. So what will be the next step? You need to get that name registered with the registrar of companies. So if you have decided on a particular name, you need to get that name registered with registrar of company, otherwise somebody else will get that name registered. अगर आपने कोई नाम सोच लिया है तो उस नाम को आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ले जाके वहां पे उसको दर्ज करवाना पड़ेगा। आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, टू चेक वेदर द सेलेक्टेड नेम इज अवेलेबल फॉर द यूज। Promoters have to write an application to the registrar of company of the state. A fees of rupees 500 is paid with the application। कि आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि भाई जो कंपनी का नाम मैंने अपने माइंड में सेलेक्ट कर रखा है या कंपनी का नाम जो मैंने ऑलरेडी मैंने एक अपनी थिंकिंग में मैंने तय कर लिया कि मैं ये नाम रखूंगा, तो whether you can use that particular name or not, whether that particular name is available for you to use or there is an existing company which is already using that name। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है हर एक स्टेट में। तो जिस भी स्टेट में आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा रहे हो उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके आपको अपना नाम जो है वो पहले से बुक कराना पड़ेगा। एक तरह से कह सकते हो कि क्या है, आपने एक बार वो नाम बुक कर दिया तो कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आप अगर कोई भी नाम आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ठीक है, सो एंड सो लिमिटेड जो भी आपका नाम है, तो आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि पहले तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं है। फिर अगर आपने देख लिया तो फिर आप उसको जाके आप उस नाम को बुक करवाएंगे या पहले से रजिस्टर करवा लेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। ठीक है, द रजिस्ट्रार आफ्टर मेकिंग श्योर that no company has been previously registered with the applied name will give permission to promoters। Promoter means the persons who are incorporating a company, ठीक है, to use the said name on the condition that they will fulfill other legal requirements within 3 months। So after you have made an application to registrar, the registrar will ensure that there is no existing company which is using the name you have applied to register। कि जो नाम आपने रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर रखा है, रजिस्ट्रार पहले देखेगा कि भाई उस नाम से कोई दूसरी कंपनी तो नहीं है, और एक बार उसने चेक कर लिया, देख लिया कि हाँ भाई इस नाम से कोई और कंपनी तो है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर आपको परमिशन दे देगा, ठीक है आप इस नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक तरह से कह सकते हो वो पर्टिकुलर नेम आपके लिए बुक कर देगा। ठीक है, जो भी नाम आपने माइंड में सोच रखा है, ठीक है, जैसे आपने PQR लिमिटेड या व्हाटएवर जो भी आपने कंपनी का नाम सोच रखा है, वो उस नाम को रजिस्टर कर लेगा। बट देयर इज अ कंडीशन attached, and that is that you will have to complete the other legal requirements within 3 months। कि आपको नाम उसने आपका रजिस्टर कर दिया, नाम उसने आपका बुक कर दिया, लेकिन नाम बुक करने के बाद आपको अपनी कंपनी की जो बाकी की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है कंपनी को बनाने की, जो अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको विद इन 3 मंथ्स पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी के जो स्टेप्स हैं
वो आपको 3 महीने में पूरे करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो नाम के ऊपर फिर आपका राइट खत्म हो जाएगा अगर आपने 3 महीने के अंदर, इफ विद इन 3 months you fail to comply with other legal formalities required to incorporate a company। अगर इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के बाकी स्टेप्स आपने 3 महीने के भीतर अगर पूरे नहीं करे तो वो नाम फिर दोबारा पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, फिर कोई अदर पर्सन उसको यूज कर सकता है। कि अगर आप कोई कंपनी लेट से XYZ लिमिटेड उसको रजिस्टर कराने के लिए गए, ठीक है, उस कंपनी को आप रजिस्टर कराने के लिए गए, तो आपको कंपनी की जो भी इनकॉर्पोरेशन के जो दूसरे स्टेप्स हैं वो 3 महीने के भीतर आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं करा तो उस नाम के ऊपर आपका राइट खत्म हो जाएगा, फिर वो आपके नाम को जो है फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो है आपने कराया वो कैंसिल कर देगा। उसके बाद कोई अन्य पर्सन आके उस नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करा सकता है। तो आपको ये इसीलिए दिया गया है, तब तक आपके पास उस पर्टिकुलर नाम का राइट आपके पास तब तक है जब अगर आप 3 महीने के अंदर, इफ विद इन 3 months you comply with all legal requirements necessary for incorporating a company। ठीक है, now this is very important, drafting of memorandum and article of association। memorandum and article are very vital documents for any company। मेमोरेंडम और आर्टिकल जो होते हैं वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को लेके अलग से पूरे चैप्टर हैं। फिलहाल अभी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो all you need to understand is that memorandum contains the objects for which the company has been incorporated and the type of business company is willing to undertake। कि कंपनी को बनाने के पीछे का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी को बनाने के पीछे आपका एक लक्ष्य क्या है वो उसमें मेंशन होता है, और कंपनी किस टाइप का बिजनेस करेगी। ठीक है, कि आप किस पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस आप करोगे, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप ट्रेडिंग करोगे, ठीक है, किस तरह का बिजनेस आपकी कंपनी का होगा, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ कहाँ होगा और ब्रांच ऑफिस कहाँ होंगे। तो ये सारे डिटेल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दर्ज किए जाते हैं। ऑल ऑफ दीज डिटेल्स आर मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यू कैन से इट इज लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, या एक रूल बुक कह सकते हो कंपनी की। ये मतलब उसमें कंपनी के बारे में एक, जिसे कह सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, कि कंपनी को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करेगी। तो ये सारे डिटेल्स मेमोरेंडम में मेंशन्ड होते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज मेंशन करी जाती हैं। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन contains basic management policies and regulations for internal management of the company। कि कंपनी का एक मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी होगी, कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह से चलेगा, कि आप अगर कंपनी को मैनेज करोगे तो किस तरह से मैनेज करोगे। तो ये सारे रूल्स जो होते हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं, उन सबको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दर्ज करा जाता है कि आपके इंटरनल जो भी मैनेजमेंट है वो किस तरह से चलेगा। आर्टिकल also creates
अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, कि कंपनी और एक कंपनी के मेंबर्स के बीच वो एक कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करता है. इट एक्ट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड अ मेंबर्स एंड इट्स मेंबर्स. आर्टिकल में कंपनी के मेंबर्स के जो भी राइट्स हैं और जो भी ड्यूटीज हैं वो मेंशन करी जाती हैं, और जो भी राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज जो भी मेंशन करी जाती हैं, जो भी उसमें बताया जाता है राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो इक्वली बाइंडिंग होता है सभी मेंबर के ऊपर. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है मैनेजमेंट के, वो कंपनी के सभी मेंबर्स के ऊपर अप्लाई होंगे इक्वली. ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास 1000 शेयर है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, या किसी के पास सिर्फ 10 शेयर है तो उस पर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. मेमोरेंडम और आर्टिकल के पूरे चैप्टर्स हैं, आपके आपके सिलेबस का पार्ट है. बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट मेमोरेंडम shows the purpose behind incorporation of a company and the types of business which a company plans to undertake. कि कंपनी को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है और कंपनी किस टाइप का बिजनेस करने वाली है, ये मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन होता है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन और कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या पॉलिसीज होंगी, ये मेंशन किया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है. बाद में इसका जब चैप्टर आएगा तो तब हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे. So that's it for today's video. Thank you for watching.